All right, ladies and gentlemen, we've got Mahendra Singh Dhoni. I can't hear you. Singh Rajput, ladies and gentlemen! We've got Mr. Neeraj Pandey also with us! I can't hear you, show them some love, ladies and gentlemen! The moment you've been waiting for! Can we hear the Dhoni? All right, one big round of applause for our entire team out here. All right, ladies and gentlemen, good evening and welcome. You need to show them some more love. I cannot feel you guys. All right, welcome everyone to the unveiling of the trailer launch, MS Dhoni, The Untold Story. I'm going to be your host today, RJ Glenn from Fever X Star FM. Let me begin, Mr. Arun Pandey, sir. Sir, the most important question. प्रोड्यूसिंग द फिल्म, आप अही को जानते हैं, आप उनकी जर्नी का एक हिस्सा बन चुके हैं. आपके क्या इमोशंस है? व्हाट आर यू गोइंग थ्रू राइट नाउ? वी हैव द ऑडियो लाइट्स प्लीज. इमोशन तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जिस तरीके से लास्ट 2 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बट ये मेरा ड्रीम था, ये मूवी बनाना, और 4 साल के मेहनत के बाद ये मूवी बन गई है. और अब हमारे इसका ट्रेलर लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग आज. और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, नीरज भाई का, सुशांत का, विजय जी का, और ऑफ कोर्स बिकॉज माही यदि कन्विंस नहीं होते तो शायद ये मूवी नहीं बन पाती. सो आज इनको बात करने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जी 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 सर, ज़रूर. MS के लाइफ का एक हिस्सा बनने वाले हैं इस मूवी के जरिए. आपके क्या रिएक्शन थे जब आपने ट्रेलर देखा? मैं एज ए व्यूअर्स उसको देखा तो मुझे ये था कि ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए भी. मैं अपने आप को अलग करके देखा और सोचा, तो जैसे ज़िंदगी में आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, बट आदमी के हाथ में अपना काम करना होता है. जो मैं इसे सीखा और उसी पे चलते रहा. सो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिला है, और आई एम एक्सपेक्टिंग सेम थिंग फ्रॉम मूवी. We all are expecting and we know it's going to be a super duper. Mr. Vijay Singh, welcome sir, CEO of Fox Star Studios. Sir, as a producer, first of all, such a big responsibility. MS Dhoni, sir, such a big responsibility. Sir, you see it right now, sir, the euphoria. आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड द कैंपेन हैज बिगन विद अ बैंग. 3 city launch. How does it feel? At Foxstar, we are always looking out for very interesting scripts. But let me tell you that in the life of every studio, very rarely comes a story which is not only an entertaining film, but it is the story that represents the soul of India. And this film represents every one of you and represents India. What can be better? So one message you think will go out to the youth of this country through this film? Well, I believe that this film will tell every Indian that if you have a dream and you work hard towards it, you can make it happen. All right, Neeraj sir, my God, goosebumps galore. I can't tell you that. I cannot tell you that feeling after watching the trailer. I hope you guys liked it. It was by and large meant for an audience, and I hope they like it. So, first biopic on Captain Cool in the country. I hope there's only one. I hope, and there should be only one. The kind of pressure or the kind of thing that you went through while making the film, like what was going on through your system? No pressure at all. I mean, it's a fabulous story. It was all in place. He's already lived that life, so it was pretty much easy to just put it on paper and then go ahead. I think Sushant here had a tougher job to do. He had to transform himself model himself into this personality next to him.
and thankfully he was by default not doing anything at that point of time, and he had the time and the appetite to sort of work hard, train hard, and deliver what you guys saw just on the screen. But so very importantly, what are the things? It says the untold story. So what did you discover? Something that we don't know. We would हमें like you to क्या go नहीं see पता? the film to see the untold story. सर एक ऐसा कुछ आपको पता चला है जो किसी को नहीं पता है. मतलब how do you want? अगर मुझे पता चल गया तो मैं आपको अभी बता दूं. हाँ थोड़ा सा आप बता सकते हैं हमारी जनता. I'm sure you all want to know a small glimpse. Okay, he's not that big a milk lover as you guys think he is. I mean, he's not that. Thank you very much, sir. Sure. Well, the moment. Mahendra Singh Dhoni, ladies and gentlemen. So it's been 24 hours. So first of all, honor, privilege to stand in front of you. I think I am very nervous right now. But so 24 hours. So you've done the city tours and more than 1500 kilometers. How does it feel with the kind of euphoria that you get everywhere that you go? Well, to start off, sorry to keep you guys waiting. You know, they were. So, sorry for that. The moment he mentioned 24 hours, I was like, no, we didn't delay it for 24 hours. So, you guys are not waiting for 24 hours. But, yes, you know, to start off, sorry for the delay. And as far as the promotion of the movie is concerned, yes, we have been to 3 different cities, including Mumbai now, and the kind of response what we have got so far is just fantastic. You know, Jalandhar was brilliant, followed by Delhi, you know, former school of Sushant. And I feel we have got very good reception each and everywhere. As far as going through the process is concerned, you know, it's very tough. You know, frankly speaking, the only good thing, we don't have to walk 1500 kilometers. You know, you have flights and you can take all of that. But yes, a lot of things get delayed because of the weather and everything. But as far as just the promotion is concerned, you know, I'm very happy that I'm part of it. I have time to be part of it. And more than that, you know, hats off to all the film stars, you know, who do it on a regular basis, and they actually do it for 15-20 days before the start of the movie, you know, before the movie gets launched. So I think it's a fantastic effort on their side, and we all need to appreciate it, you know, that the amount of effort they put in, you know, leave getting into the character part, acting and everything, you know, it's just that the amount of effort that is put in to make a movie successful, you know. So आपने रिसेप्शन के बारे में बताया, दिल्ली जलंधर के बारे में, लेकिन आमची मुंबई तो आमची मुंबई है भाई. Hey Mumbai, you're not doing well, yeah. Come on. You know, Mumbai is a very special place. Hey, one second. Mumbai is a very special place. From Captain, hold on. Mumbai, if you see, is a very special place. 2007 World Cup, T20 World Cup, when we won, we came back to Mumbai, and you know, quite a few of us from England, we went to South Africa to play the T20. And once we were coming back, we had won the tournament, we were coming back, and it was almost over 3 months. So, you know, that anxiety of being with the family is there. So, we are about to land, and I think it was very cloudy, it was raining heavily. And we knew that, you know, we had like a march where we were supposed to go from the airport to the stadium. And I told all my friends, you know what, it seems we'll get an early flight home. Because I thought in the kind of rain, that nothing will happen, we'll be at the airport, we'll be able to catch the flight home to respective places and we'll be off. But I was completely wrong. You know, we just got out of the aircraft. Before immigration, there were people. And when I talk about people, lots of people. I had the trophy in my hand. It was a very heavy trophy. It was the first edition. It must be one of the heaviest trophy. I was holding it in my right hand. We started walking. I had to put it like that. And after a while, I realized it's too heavy to carry. But there's so many people, I couldn't lift it up. So it was like that till we crossed immigration and we boarded the bus. And right from the airport till the Wankhede Stadium, there were people on both the sides of the road, and they were so happy. A lot of them would have missed their flight, but still, you know, the cars were parked, all of them were outside, and they had a smile on their face. You know, that's an amazing feeling, because that was the first time you saw like a swarm of people and all of them were happy. It was raining, the mobile phones were out, everybody was clicking pictures and everything. So that was the 2007.
I don't think I need to talk about 2011. But it's just that, we are a bit late for here. So that whole thing of, Mumbai, it actually slipped. And I was more concerned about, being late for the launch. Come on, guys, let's give it an. Oh, come on, that is awesome, man. So, generally, Neeraj sir makes very real films and all of that, and there is a big responsibility of portraying your life. आपकी जो पूरी life story है इस film के जरिए, आपको कैसे लगता है ये जो amalgamation हुआ है film का और आपकी life का, आप थोड़े से worried हैं, कैसे लग रहा है आपको, क्या feeling है? No, I'm not worried at all. I have confidence in all the crew who has worked in the movie, Neeraj especially, right from the start. The good thing was we were on the same page. Because I've seen quite a few of his movies and I like how he puts things on screen. And I think right from the very start we were clear, we don't want to make a movie which, makes me a hero or glamorizes me. It was more about the journey so that people can, relate to it, because we all go through almost the same thing. Okay, everybody doesn't play for India, but at the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. And, it's all circumstantial, small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. So it's all about that, the small things. Yes, people know a lot about me. I played football. I was from a particular school. I got a job with the railways and I moved on and all of that. But what happens in between that is what really, pushes me or transforms me to what actually I am today. So the movie is more about the journey and, how I deal with everything, because I keep saying, be in the present, but the movie in a way will actually show what all happened that actually helped me be in the present or that taught me to be in the present and how being in present really helped me. So a brilliant blend इस मूवी के जरिए क्रिकेट एंड अब बॉलीवुड हो रहा है, तो आपको लगता है क्रिकेट को एक अच्छे और ज़्यादा ब्राइटर लाइट में दिखाएगा इस फिल्म के जरिए, आपको लगता है? I'm a bit hesitant on that, but as I said, people can easily relate to it. And cricket is a part of the movie. Like how I keep saying, cricket is a part of life. It's not my entire life. In the same way, cricket in this movie is a part of the movie. It's the human feeling and the emotion and everything that's more of the movie in this. So, it's not only cricket. So, हमने देखा कि आप प्राइवेट पर्सन है, आप आप ज़्यादा जैसे कहते हैं आप यू आर नॉट वेरी लाउड, आपकी स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, तो आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, to watch your own movie. Movie that's made on you, it's a bit awkward to be frank, but at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसे बैठा रहूँगा, मैं ऐसे बैठा रहूँगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूँगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज़्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. सर हेलीकॉप्टर शॉट सर. सो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने. एंड नीरज तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं
I feel he's one of the best directors. काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है. इट स्टिक्स टू द थीम एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ओवर. सो यू नो नीरज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे. आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. और आई फेल्ट जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज़ अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी. मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया. ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं. तो if you can convince him for an interview, you will get a better interview than really asking me a question, क्योंकि मैं काफ़ी बार बोल जाऊँगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. बट सो बहुत ही स्पेशल है मुंबई आपके लिए, टीम इंडिया के लिए. एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे सारे मुंबईकरों के लिए जो गैदर्ड है यहाँ पर, समथिंग दैट यू वांट टू से. नहीं लास्ट मतलब टेंशन मत लो, डोंट सस्पेंस बिल्ड हो रहा है भाई, आराम से. सर, one message to all these fans, all these Mumbaikars who have gathered here, sir. I think for me, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई इज़ वेरी डिफरेंट प्लेस. हर जगह जब आप जाते हैं, दिल्ली बहुत डिफरेंट है, कोलकाता बहुत डिफरेंट है. आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं चेन्नई में 8 साल खेला, 7 साल 8 साल खेला, तो वहाँ के कल्चर को समझ पाया. मुंबई 2005 के बाद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया शूटिंग्स वगैरह में. आई फेल्ट यहाँ का जो कल्चर है वो एंटायरली डिफरेंट है. People are very focused in what they do, and the culture is also how they have moved forward in life. How they are willing to help each other, but at the same time they are not very intrusive. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जैसे if you are a celebrity आप बाहर जाके घूम भी सकते हो. लोग आएंगे, they'll ask you for pictures, photographs. अगर आप बोलो नहीं नहीं अभी थोड़ा प्लीज छोड़ दो, they're happy. Okay, thank you. They'll move on. So I feel that's the essence of Mumbai, and I feel that's something that needs to keep moving forward, keep going forward to the next generation. क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी, बिकॉज मुंबई जहाँ तक ज़मीन की बात है तो फैल नहीं सकता है. पॉपुलेशन फैलेगा, गाड़ियाँ फैलेगी, ट्रैफिक फैलेगा, सब कुछ होगा. सो दैट पेशेंस लेवल नीड्स टू गो अप, बट एट द सेम टाइम everything else remains to needs to be there at the same time. Thank you, sir. Thank you so much. Sushant, the man who's played MS Dhoni. So, I think let's give it up for Sushant, man. Nobody could have done this better than him. सुशांत, मुझे याद है अब हम एक बार मिले थे बाहर, हम ऐसी बात कर रहे हैं. आई रिमेंबर टेलिंग यू दैट आई डोंट थिंक एनी, जब आपका फर्स्ट लुक निकला था, आई सेड बॉस नोबडी कुड डू इट लाइक द वे यू हैव डन इट. सो रियल, सो मतलब इतना पैशन, वो पोस्टर में ही इतना पैशन दिख रहा था. I want to ask you, this is the mother of all biopics. मतलब right. कुछ नहीं, मतलब for every Indian सीना तान के खड़ा है यहाँ पर, बोल रहा है बॉस this is it, like the Michael Jackson moment, this is it. I'm telling you how much pressure to get into the skin of the character, and you have done after this trailer launch. I think boss, I think जुड़वा ऐसे लग रहे हैं यार, seriously the one. So how much of pressure? I think to start with it was more excitement than pressure. मैं जैसे एक स्टोरी बताऊंगा, 2007 की बात है या 6 की बात है. बहुत ही तवज्जो, बहुत ही मुश्किल से किसी तरीके से मैं और मेरी फैमिली MS तक पहुंच पाए थे, और मैंने एक फ़ोटो खींचा था अपनी फैमिली के साथ. और he is one person, one of the very few person who I seriously have very enormous respect for. I look up to him, and so to get an opportunity to know his inside story up close and personal gave me lot of excitement, not pressure. And very honestly, there are films in your career you do it with full honesty and you end up being a good actor, but there are very very rare films that you do and you end up being a good human being, and this is one of the. What a line, सुशांत यार, क्या बात बोली आपने यार. आपने बहुत रिसर्च किया, जैसे सर ने कहा कि आप इनके पीछे पड़े थे इंफॉर्मेशन के लिए. किस टाइप की रिसर्च हुई यहाँ पर? मैंने पहली बार MS को थोड़ा सा अपना कूल जो है वो खोते हुए देखा था. आपका प्रोमो मिल गया. हाँ, पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली पेशेंटली विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे. लेकिन एक बार बोलते यार एक
तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में एंड सुशांत भाई ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ हुआ था ऐसा स्पेसिफिक, मतलब क्या पूछा था आपने? नहीं मैं बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछ रहा था मेरी अच्छा अच्छा क्रॉस ऐसे एक बार पूछता था, फिर उसको ना बाएं से पूछता था, आंसर अगर सिमिलर हो तो अच्छा सच बोल रहा है, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाता था. एंड आई टोल्ड यू इट वाज अ बिट ऑकवर्ड, इनिशियली थोड़ा ऑकवर्ड है टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है. एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब वो 15 मिनट हो जाते हैं लगता है ये मैं कर रहा हूँ. So I was like, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा. I think you need to give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And now, a few selected fans, sir, have got an opportunity. Sushant, कुछ fans हैं यहाँ पर जो आप लोगों से सवाल पूछेंगे. एक-एक करके अपना नाम लीजिए. And the lucky few are going to get this opportunity right now. So, Baba, one second. We've got mics passed out there somewhere. Yeah, we've got somebody. Hold on. My question is for Dhoni sir. Sir, what lesson the game of cricket teaches you? What game of cricket teaches me? You know, it teaches you a very important lesson in life. I feel cricket it's a great leveler. You know, it levels you out. You know, if you're not humble, it teaches you how to be humble. Cricket एक ऐसा गेम है जो फ्लिप ऑफ कॉइन से स्टार्ट होता है. यू नो, टॉस के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है, यू डोंट नो हेड आएगा टेल आएगा. क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है, और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है. यू नो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिकेट में ही होती हैं. दैट्स वाई वी ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट लेवलर. और हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है, यू हैव टू डील विथ योर इमोशंस, प्रेशर, जो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती हैं, एंड इट ऑल रिलेट्स टू यू, इट ऑल रिलेट्स टू अस व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ. सो आई फील इट टीचेज यू अ लॉट. अगेन इट इज़ अ टीम स्पोर्ट, सो अगर आप दूसरे भी टीम स्पोर्ट अगर खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे. बट कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिकेट जैसे गेम में ही होती है. यू नो, अगर आप नाउ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, you know, I think it has to be taken in a humorous sense. You know, DRS की अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन योर लक सेम डिसीजन पे आप आउट भी हो सकते हैं और नॉट आउट भी हो सकते हैं. अगर अंपायर ने आउट दिया है तो आप आउट है, नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट है. यू नो, तो ये फर्दर एड्स ऑन टू सम ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्रिकेट. Have you achieved what you wanted to achieve from cricket? यू नो, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा. आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूँ, चाहे आज खेलूँ, 6 महीने बाद खेलूँ या 3 महीने बाद खेलूँ. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है. यू नो, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. यू नो, जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज़ द पर्पस. यू नो, माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. यू नो, माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड हैं, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. यू नो, सो it's not about milestone. What it's about is, you know, how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. You are a global icon, and what makes you move every day? What's your mantra of the day, which keeps you going, motivates you? Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है. सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऐसी कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती. आसपास इतने सारे मोटिवेशन है. यू नो, आप खुद अपने आप के मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है. यू नो, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो. तो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, एंड आई फील फॉर मी, you know, country is the biggest or the most motivating factor for me. Hello Mahi sir here. Hi sir.
इधर अरे ये हटना सर 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 first of all I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so okay, so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है सर। तो हाँ और ये दिस इज सवाल ड्रीम फॉर मी। ओके सॉरी हाँ, तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल। तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज़ मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे, थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें। और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए, मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्ज़ाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए, मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं की होगे तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो। You live in Mumbai. Who is your favorite Bollywood singer? यार ये बड़ा सिंपल आंसर है, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। Hello, Mahi sir, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Shrishant, and also before hitting the World Cup winning 6 over long off. Long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस 4 हो गया, बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें पेस नहीं है, तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका है। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता, बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है, छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स वाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहाँ तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए, क्योंकि जहाँ जाओ हर कोई एक ही चीज़ बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है, क्यों इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज़ बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ,
उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे. एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना, और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है. सो इट वाज अ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया. Some people will find it weird, but I want to say to you कि जब भी आप रिटायरमेंट लो तो प्लीज बता के लेना, क्योंकि लास्ट मैच हम ऐसे देखें कि लास्ट टाइम आई खेल रहा है और उस फील के साथ ले, बिल्कुल एडप्टली मत लेना प्लीज. नहीं, अगर बिना बोले लिया तो डेफर्ड लाइफ फिर से मैच चला देंगे. हेलो, हाय MS धोनी एंड सुशांत. मेरा क्वेश्चन सुशांत से है. आपने MS धोनी का किरदार निभाकर आपने क्या सीखा? इंटेंस क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत इंटेंस. और सर, मैं आपके पास आकर थोड़ा पिक्चर लेना चाहती हूँ. असल मुद्दा ये है यह क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, और आप जिस तरीके से फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पंक्चुएट किया गया है फिल्म में. तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो बार बार MS अभी कह रहे हैं, हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वो जब हम करते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है. हम हमेशा पास्ट में ड्वेल कर रहे होते हैं या फ्यूचर में होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, सचमुच खुली आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. मेरा सवाल आपसे है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे एक्टर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेटर राजनीति कर रहा है और राजनेता पॉर्न देख रहा है और पॉर्न कलाकार स्टार बन रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है. डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपने ऑप्शन बहुत ज्यादा दे दिए. लाइफ में जब बड़ा हो रहा था तो ऑप्शन कम थे, क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो. 18 साल की उम्र में जब जॉब लग गई तो एक चीज हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट का जॉब मिला है. क्रिकेट अगर खराब भी करते हैं तो एक रेस्पेक्टफुल जॉब है हमारे पास. आपने अब इतने सारे ऑप्शन देखने हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, किस पर्टिकुलर रोल में लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे. तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट काफ़ी यूनिटी है, काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जैसा कि आपने बोला. आगे का बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो अभी उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे. Alright, that will be the last question. We're going to have a photo op session now with Mahi and Sushant. सुशांत का चयन करने से पहले आपके जहन में कहीं MS धोनी का भी नाम था इस रोल के लिए? नहीं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना अभी, उनको खेलने देते हैं. उस समय तो वो रिटायर भी नहीं हुए थे टेस्ट से. एंड बिटवीन इफ आई वाज हैविंग अ चॉइस ऑफ चूजिंग ओवर MS द क्रिकेटर और MS द एक्टर, आई वुड हैव प्रेफर्ड MS द क्रिकेटर. थैंक यू. सुशांत, एक सवाल आपसे. जो आम से खास बनने का सफर है, उसमें एक जो कॉमन फैक्टर है वो है स्ट्रगल. जी. तो इस बायोपिक में आप उससे इमोशनली कितना कनेक्ट हो पाए? मैं उनकी स्टोरी से जो भी चीज़ें हुई हैं इवेंट्स में, वो क्या फील कर रहे थे, मैं वो सबसे बहुत कनेक्टेड था, क्योंकि थैंक्स टू नीरज सर, पूरे वो स्क्रिप्ट में इतनी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ था कि एक बार दो बार जब मैंने सर के साथ में बैठा तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि हर सीन का बॉटम लाइन क्या है और वो क्यों है फिल्म में. तो वो क्लैरिटी तो बहुत थी, और नज़रिया जो है वो मेरे हिसाब से हमारा थोड़ा सा अलग है. हम जनरली सोचते हैं कि जब लोग पहचानने लगे या लोग बोले कि यार अब तुम सक्सेसफुल हो तो तुम कुछ हो, उसके पहले तुमने जितना कुछ किया वो स्ट्रगल है. ऐसा होता नहीं. जब आप काम कर रहे होते हैं और आपको सच में उसमें मज़ा आ रहा होता है तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और वो सबसे अच्छा फेज़ होता है, वो प्रोसेस सबसे अच्छा फेज़ होता है. उसके बाद आपको फेम और मनी मिले तो वो
चार चांद लगने वाली बात है, लेकिन आपका पूरा जर्नी वैसा होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। क्रिकेट और जो एक्टिंग है दोनों में रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कौन सा फैक्टर सर? रिस्क दोनों में रिस्क फैक्टर बहुत हाँ, सक्सेस होंगे नहीं होंगे। तो आपको ये चीज कितनी डराती है फ्राइडे के दिन? मैंने अभी 2 हफ्ते पहले एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ 93,000 तरीके से आप रोज मर सकते हैं। तो आप सोचिए अगर आप एक दिन सर्वाइव करते हैं तो आप कितने लकी होते हैं कि आप 93,000 तरीके से नहीं मरते। तो लक तो फिर ये देखा जाए तो जो लक फैक्टर है वो हर चीज़ में होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है रिजल्ट को लेके तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर आप मज़े ले रहे हैं काम करते हुए तो फिर लक आपको थोड़ी देर तक रोक सकता है, लेकिन इवेंचुअली आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। सर मुझे ये पूछना है कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? आप MS धोनी का किरदार निभा रहे हो, तो एज अ आर्टिस्ट आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होमवर्क करने में? मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कुछ महीने लगे सब कुछ सीखने में। इतना सीखा कि मैंने खुद को हर दिन ऐसा कुछ घंटे होते थे जब मैं अपने आप को कन्विंस कर लेता था कि मैं कैरेक्टर हूँ। तो इस सोच से हमने शुरू किया और सर ने जिस तरीके से गाइड किया मैं बस चलता गया और फिल्म आपके सामने आप देखेंगे। नीरज जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत कम ऐसा होता है कि आप जनरली जब एक फिल्म बना रहे होते हैं तो आप अपना प्रिपरेशन करके आते हैं और अपनी आपका एक आपके दिमाग में एक कैरेक्टर स्केच होता है, लेकिन जब आप डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं और वो अपना कुछ इनपुट्स देते हैं तो फिर आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन ये पहली फिल्म है मेरी जब मैं इतना एब्सोल्यूट श्योर था कि अगर नीरज सर ओके बोलते हैं तो मुझे ज़रा भी नहीं लगता था कि मैं एक बार मॉनिटर जाके देखूं कि मैंने क्या किया। आई वाज सो श्योर कि इट विल बी एन ओके टेक। There was a movie called Wednesday, which happened to be a turning point in your directorial career, which brought a lot of accolades in your career as well. So now this movie Dhoni, what do you think Dhoni is going to be as a movie in your career? The idea is to give a movie that the audiences like, nothing more, nothing less. I hope it's for an audience, and I hope they love the film. Sushant, was MS satisfied seeing you performing himself, or how was his reaction seeing you? आपके सामने थे आप। What did personally complimented you, or how was it? अभी हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे तो मैंने उनको एक वीडियो दिखाया था जो ट्रेनिंग वीडियो था, जिसमें मैं उनके जैसा उन जो टिपिकल शॉट्स वो जो पुश करते हैं, जो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, जो विप करते हैं, वो सब खेल रहा था। तो वो देखे और बहुत ही स्माइल करके बोलते यार ये तो एकदम फोटो कॉपी कर दिया है तुम। तो अच्छी बात है ये। Personal level, did you learn anything? I can't hear you, bro. Sorry. On a personal note, on a personal level, did you learn anything from him? Of course, I've learned, and that's why there were many things before I got this film that I was hugely, immensely inspired by, and there were many things that I wanted to understand vis-a-vis Mahi is concerned, and that's precisely the reason why I did the film. I have a couple of questions, but firstly, it's a mind-blowing trailer. It's the grandeur. It's looking really great, really good. First question is that we have seen Mahi getting creatively involved in the whole process of the filmmaking. So we have seen a lot of other players or other cricketers or maybe sports person, getting involved in the marketing and all those aspects also. So to what extent, anyone can answer, Mr. Pandey, Mr. Singh, anyone. So to what extent we will see Mahi getting personally involved in the marketing and the strategy of the film? That's my first question. And second question is, the second question is, we saw, the last scene, Mahi hitting the ball out of the park, the World Cup scene. So there were a lot of news about, it was written that the original footage will be used for the film. But we saw that you guys have recreated that scene. So was there any problem with the BCCI providing the, was there any issues with the BCCI not providing the footage for you guys? Who's this address? I mean, you can answer, Mr. Singh or Mr. Pandey, anyone. First of all, I would just like to reintroduce, this is Arun Pandey, the producer of the film. That's Vijay Singh, the producer of the film, Foxstar Studios. First of all, thank you very much for encouraging word. And let me tell you one thing. We had full support of all
cricketing body. That's why we were able to make this movie. Otherwise, it was not possible at all. So I am really thankful to entire board, every board, not only BCCI, every board. So that's why we were able to make this movie. So and about creativity, yeah, of course. Neeraj ji and MS and Sushant both spend lots of time together, and everyone were on same page. So definitely because it was his biopic, so his involvement was, of course, was there. And about marketing and promotion, I mean, I'm thankful to him that whatever request we are putting towards him, especially my job become easier because of Neeraj, because he's able to convince him, and he's agreeing for that. So he started understanding. So whatever support is required, he's giving support to us. And Sushant, the question is for you. While during the whole journey for the film, you have been injured, you have been practicing a lot. It was like so if you have to narrate the whole journey in few words or few lines, so what would that be? How would it be? It's slightly a dicey question. About the film, about my journey, what? Of course, but cricket is just one aspect of the film. Through cricket, we are not showing anything. But yes, cricket is one of the one of the things that we are using in order to tell you what the man is, who the man is. So basically, cricket was important because in order to convince the audience that I am MS, so I have to play shots like him. So obviously, there were lots of time that I invested in playing shots like him. I got injured, obviously, but that's what you do when you try to cultivate a new skill at my age. But then worth it. You liked this trailer, and that's what we wanted. I want to know, like you talked about training. You are a fit guy, but when you had to play Dhoni, did you realize that you're not as fit as the cricketers? What did you do? How did you cope? And what was the fitness training like? It happened to me I think in the second or the third day of the training when Kiran Moresa, he was my trainer, and he asked me to wicket keep. And I always thought it's a very easy job. Let me be very honest. I always thought, you just have to catch the ball if you have very good eyesight and your reflexes are good, so you can catch the balls. But let me tell you, in 30-40 seconds, I could not sit in that posture for like 10 seconds. I got backaches, I got cramps on my quads and everything, and it was so difficult. I can't tell you, I broke my finger. I had bruises all over my hand, and it's such a tough job. So yes, now I have immense respect for all the cricketers who play and at this level, and so obviously. मतलब इनका ही बायोपिक आया मेरे पास एज अ प्रपोजल, और किसी का नहीं आया. ऑन अ सीरियस नोट, कहानी इनकी जो जर्नी रही है, जहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की है, बहुत ही इंस्पायरिंग है. आप जानती हैं शायद कि ही वाज बोर्न झारखंड, रांची, इट वाज देन बिहार. फ्रॉम रांची टू बी द पर्सन टू अचीव व्हाट इज अचीव्ड. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, and I always find these kind of stories very inspirational. तो झुकाव उसी तरफ था. ये आप बताएंगे या ये MS बताएंगे कि मैं कितना ऑनेस्ट रह पाया. MS ने फिल्म देखी है, तो आप जब नेक्स्ट मिले तो उनसे पूछ लीजिए. हाँ, तो ऐसा था कि बिफोर when we started on this project, me and MS had a very clear understanding कि वो मुझे जो भी है सब कुछ बता देंगे. एंड उसके बाद हमारी रिसर्च टीम जो है, एंड वील डू अ स्क्रीन प्ले, एंड देन ही विल सी द स्क्रीन प्ले, ही विल रीड द स्क्रीन प्ले, एंड देन ही विल रिएक्ट ऑन इट एंड सजेस्ट वट एवर नीड्स टू बी डिलीटेड और नीड्स टू बी चेंज. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी शायद जो वो शेयर नहीं करना चाहेंगे शायद विद द वर्ल्ड बाय एंड लार्ज. ऐसा कुछ निकला नहीं. बस यही जवाब है आपका. That's not my call, as you would understand. It's not my place to answer on his behalf also.
he's an individual who has his own choices. I don't know what the reason is, but you can't ask this question to me because I'm the wrong person. I'm absolutely sure that you should guys hear. Yeah. I mean, it should have been informed. I don't know why that has happened. I apologize on that behalf that it should have been communicated to you. Yeah, I'm apologizing on their behalf. Fantastic. Thank you. धोनी जी की जो लाइफ है काफ़ी ग्लैमरस रही है, उबड़ खाबड़ भी रही है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि वो डटे रहे कि इसको नहीं डालना है और आपने कहा नहीं मुझे इस फिल्म में करनी, वो चीज़ें ऐड करनी है, ऐसा कुछ है कोई चीज़? नहीं, ऐसा मैंने अभी बताया इनको कि ऐसा कुछ निकला ही नहीं। हमने जो तय किया था आपस में कि वो एक बार सब कुछ बता देंगे और उसके बाद हम लोग 3 घंटे की फिल्म होती है, 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, तो बेसिस दैट जो स्क्रिप्ट होगी और अगर उनका कहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो बताएंगे, बट देयर इज नथिंग दैट केम आउट, सो व्हाटएवर ही शेयर्ड basis that the script was made and that script is the film that you're going to see. कि अगर बॉलीवुड का इतिहास देखा जाए तो स्पोर्ट्स की फिल्में हाल ही में चलना शुरू हुई हैं। अगर चक दे का एग्जाम्पल छोड़ दें तो अभी सुल्तान चली है, मैरी कॉम चली है, मिल्खा चली है, लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स हैं वो इतने इनकरेजिंग नहीं हैं। जहाँ तक मुझे याद है लगान एक फिल्म थी और उसके पहले इकबाल थी श्रेयस तलपड़े की। क्रिकेट पे ज़्यादा फिल्में चलती नहीं और हाल ही का एग्जाम्पल है अजहर का जो नहीं चली। तो क्या जब आप ये रोल प्ले कर रहे थे और जब आपने ये फिल्म साइन की तो आपके मन में बैक ऑफ द माइंड किसी तरह की आशंका, एप्रीहेंशन था कि क्रिकेट पे मैं फिल्म कर रहा हूँ? क्या कुछ चल रहा था उस दौरान आपके मन में, मैं जानना चाहूँगा। सर, मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा था और थिएटर कर रहा था तो मुझे हर शो के 250 रुपये मिलते थे और मैं उसको बहुत दिल लगा के बहुत अच्छे से काम करता था उसमें भी। तो आज भी जब मैं फिल्म्स में काम करता हूँ तो कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचता। जिस दिन प्रोड्यूसर बनूंगा उस दिन मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। A lot of controversies have been revolving around Dhoni throughout his tenure. So even light has been focused in the film. Are we going to see even that? If yes, then, and if not, then why? I won't know your definition of controversy, but you saw the trailer and we've touched upon certain key elements of his life, certain decisions that he took while he was working, both in his personal and his and in the capacity of a captain. And yes, they are all there in the film. We are. It's not a hagiography. We are not like MS himself said that it was not there. The idea was not to glorify and put a halo around him. The idea was to tell his story as is, and that's what we've tried to do. And I hope we are successful in that. यही कि आप देखिए कि हम सब कितना हर समय यही सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा तो बहुत गंदा होगा। फिर हम प्लान बी सोचते हैं, प्लान सी सोचते हैं। लेकिन आप जब इस जगह पे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आप बिल्कुल भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बिल्कुल भी पास्ट के बारे में, ना तो आपका कोई रिग्रेट होता है, ना तो आप वापस जाना चाहते हैं। आप सिर्फ प्रेजेंट में हैं और जो सही आपको लगता है वो बार बार करते रहते हैं। ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। सुशांत जी, इस फिल्म में आप गाने वाने गा रहे हैं आप किसी हीरोइन के साथ या नहीं? मैं तो कभी उदास दिख रहे हो आप। मैं किसी फिल्म में गाना नहीं गाया सर। कुछ म्यूजिक के बारे में कहिए नीरज जी। हाँ जी। रोमांस के बारे में कहिए, कुछ सुशांत रोमांस कर रहा है कि नहीं फिल्म में? सुशांत रोमांस कर रहा है। सुशांत रोमांस कर रहा है। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च झारखंड में नहीं हुआ, बीइंग धोनीज होम टाउन, तो आर यू प्लानिंग पर्सनली वहाँ पे जाके किसी तरह से फिल्म को प्रमोट करोगे किसी लेवल पर? पिछले 1 साल से वहीं पे था, अभी इधर आया हूँ तो थोड़ी देर बाद जाऊँगा उधर। ऑफ कोर्स झारखंड में भी जाएंगे और मैं पटना में पैदा हुआ था तो उधर भी जाएंगे, बड़ा आसपास वाली जगह। इंजरी तो बॉडी में थी, हार्ट ब्रेक हार्ट में था और माइंड सेट तो सही था, माइंड अलग है। बिल्कुल भी नहीं। Obviously, there's one thing to play the great Mahendra Singh Dhoni. I'm sure you've done a good job at that. But how much have you been able to incorporate the great sense of humor of the Captain Cool? Great sense of humor of him? Yeah. Well, I got the dialogues and I got the timing correct. So yeah, in the film I've got a great sense of humor. But in your interaction with Dhoni, like, were you able to imbibe that sense of humor? Catch? He was laughing at most of my jokes, so I would assume that yes. Thank you so much. The trailer looks really amazing and all the best for the film. जो फिल्म जब बन रही थी तब आप काफ़ी न्यूज़ में थे, प्रोफेशनली और पर्सनली भी। अंकिता को लेकर भी आप न्यूज़ में थे एंड कृति को लेकर भी आप न्यूज़ में रहे हैं। कृति ने उस पर बात किया है ऑन द लिंक अप विथ यू, योर कमेंट्स टू इट।
जिन्होंने बात किया उस पर कमेंट करना है या जी कृति ने बात किया था जो आपको आपके साथ जो उनका लिंकअप न्यूज़ आया था। जी वो बहुत हमेशा सच बोलती हैं, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। सुशांत, मेरे दो सवाल है आपसे। एक तो आई जस्ट वांट टू नो दैट जो ये हेलीकॉप्टर शॉट्स जो एक्चुअली उन्होंने बताया रेप्लिका, हाउ मेनी डेज इट टुक फॉर यू to learn that shot, and it was really very good you played. और second है कि I saw your body language when you were Mahi was here, and the body language changed when the Mahi went away. What was it like? Were you nervous that time when Mahi was around? Right now? No, when Mahi was here right now. बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई? Yeah, body language changed because that time नहीं, उस समय मैं बहुत ही कंफर्टेबल चेयर पे बैठा हुआ था। अभी अरुण सर ने वो चेयर ले लिया और मेरा चेयर जो chair is same only, sir. Just because of this, otherwise I'm completely the same person. Oh, you're nervous? Yeah, it's a wobbly chair. So ये जो फिजिटी है ये चेयर की वजह से मैं बिल्कुल काम हूँ अंदर से। Okay, और हेलीकॉप्टर शॉट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो वो कुछ पहले कुछ 2-2.5 महीने लगे, क्योंकि मेरा एक जो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे एक रिब में स्टाइल मारने के चक्कर में, तो उसके लिए कुछ 15-20 दिन का गैप हो गया। नहीं तो 2-2.5 महीने में मैंने सीख लिया था। पहले लड़की तो ढूंढो उसके बाद शादी करो। इन द पर्सपेक्टिव दैट इट्स बीन मेड, ये बहुत अनयूजुअल फिल्म है। दे आर नॉट, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि इन बॉलीवुड हम सब कहते हैं वी मस्ट मेक मोर स्ट्रॉन्ग स्टोरीज। नाउ फाइनली वी गॉट अ फिल्म व्हिच आई कैन टेल यू Bollywood is going to be really proud of it. We're going to be releasing the film very wide in India and across the world. So this is a film that's going to make all of us as Indians very proud. Thank you. आपका जो गाना है, ये लाइनें आपके लिए क्या मायने रखती हैं? इस फिल्म में आने से पहले क्या आप भी मानते थे हर गली में धोनी है? जी बिल्कुल, और ये देखा जाए तो एक तरीके का मेटाफोर है कि जो धोनी जो है वो हम लोग ड्रीम से दिखा रहे हैं कि आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी सिटी में हो, लेकिन अगर आप सपने देखते हैं तो वो पूरा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उन्होंने फिल्म भी देखी, सब पूरे हो गए, अभी नया बनाना है। Sorry? No, that's a. I don't know. You found a look-alike. You found a look-alike. No, but it's not Shikhar. You just mentioned Dhoni watched the film. What was his reaction after watching the film? No, we were both silent
for about 10 minutes after he'd seen the film. That goes to say that he must have liked it. Yeah. There was nothing to say. इस गाने को बनाने की कोई खास वजह जो भी we all love धोनी but हर गली में धोनी क्या वजह रही खास इसको This is just to celebrate the film. और कुछ नहीं. Celebrate the process that we'd gone through, the experience that we've gone through, and yeah, I mean it's just a tribute and an ode to the man, to the film. To both of you, the vibes is very positive around the film. Response is really good. You people are nervous or excited? I'm excited because I have had great experience while shooting for it. So you feel better when you share that experience with people. You're saying you're excited, he's nervous. Do I look nervous? He said, I'm excited. I thought you're nervous. I can't speak for him. क्या कहना चाहिए? The response is really positive. और फिर उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती हैं. क्रिटिक की बात करें या आम ऑडियंस की बात करें, बहुत सराहा जा रहा है हर जो भी MS धोनी से रिलेटेड. हमारा जो काम था हमने कर लिया, and now we look forward to the response that the audience has to give. Neeraj sir, there have been films like Bhag Milkha Bhag and Maricon which have won the tax-free status. So are you eyeing for the same somewhere? I think the studio will be in a position to answer this one better. Neeraj sir, any plans to perhaps rope in Dhoni for a special song in the film or a No. This is a biopic on him, not a situation like you suggested. One person at a time, please. जहाँ पे फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वहीं धोनी के जो टीममेट्स हैं उन्होंने कहा था कि क्रिकेटर्स पर बायोपिक नहीं बननी चाहिए. आप दोनों का क्या मानना है इस पर? फिल्में कहानी पे बनती हैं. मैंने 5 बार ऐसा किरदार किया थिएटर में जब मैं इंजीनियर था. तो वो इंजीनियर पे कहानी नहीं थी, वो कहानी पे कहानी थी, प्ले था. तो बेसिकली अगर कहानी सुनाने लायक है तो आप कुछ भी हो तो आप पे फिल्म बन वही मैं बोल रहा हूँ ना कहानी. हाँ जी क्या? शहीदों पे पिक्चर्स बननी चाहिए जो इस वक्त हो रहा है चल रहा है उन पर पिक्चर बननी चाहिए. तो मैंने दोनों तरह की बनाई है. I think we make stories. It's not that every film should be a particular genre or anything of that sort. I think as storytellers we need to talk about everything, and this film is about the heroes in us. It's a very motivational, inspiring film, and that inspiration, that motivation can come from anyone. And also mind you that MS is a serving lieutenant colonel in the Indian Army. So that I think should answer your question completely. नीरज क्या वो रियल लोकेशंस है और रियल लोगों के साथ जो एक्टर्स नहीं है उनके साथ अपने आप गाने की बात करें? Okay, the song, the concept has been approved by us, but it's not physically shot by me. The song was shot by an agency, and it was shot around, I think, 16 different states and places, just to show the diversity of India and to capture that particular image. When you do a film on a national figure like Dhoni, do you think that will add on to your reach as an actor as well? Because everyone in the country knows Dhoni, they know their game. So when you play him on screen, does that increase your reach as an actor as well? Yeah, reach-wise is fine, but it can work either ways. If you don't perform, then yeah. Yes. किरण मोरे ने आपको जितनी अच्छे से ट्रेन किया था उसके बाद शायद सचिन ने भी आपको नहीं पहचाना था, वो कंफ्यूज हो गए थे क्रिकेटर है या एक्टर. बट वो जब कोलिन से आप उनसे मिले थे उन्होंने कुछ बताया आपकी? जी मैं नहीं मिला था, मैं BKC में प्रैक्टिस कर रहा था और सचिन फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के देख रहे थे. तो बीच में जब उन्होंने ब्रेक लिया तो किरण मोरे सर और वो उन लोग के बीच में बातचीत हुई तो उन्होंने शायद पूछा था कि कौन सा टीम से खेलता है. Just let it be. No, like Sushant just mentioned, Dhoni is a metaphor in the song. आप जो चाहे बन सकती हैं अगर आप उसको अपने पैशन से चेज करती हैं. That is the essence of the song. सुशांत, जो सॉन्ग अभी बताया गली गली पे धोनी है, तो क्या आप खुद से गली क्रिकेट खेले हो क्या? गली क्रिकेट ही खेला हूँ. उससे ऊपर कभी खेल नहीं पाया, इतनी काबिलियत थी नहीं. लेकिन इस फिल्म में पूरी कोशिश करी है कि अच्छा क्रिकेटर दिखूं. ये गाना फिल्म में होगा या फिर प्रमोशन? No, this is only for promotions. It's not in the film. Like I said, it's a tribute to the experience that we had while making the film. So that's it.
Is the film censored and what is the runtime? The film is in the process of that. But what is the runtime? We'll figure out once the censor. Neeraj, also for the fact that you made films on terrorists and terrorism, recently there were these URI attacks and of course the entire nation, the URI attacks recently which shook the nation. My question to you is, diplomatic talks as far as tackling terrorism is not really helping. Do you think it's time for people to take inspiration from your films and stories and how it tackles terrorists and terrorism and apply it to real life? No, I won't suggest that. That's an opinion in a story. Okay, and I don't think that any personal opinion that I have is supposed to be spoken on a public platform as this. It's for you to take whatever you want to take. I don't control it, I won't condition it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. दिशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। टीवी जगत से आप एड फिल्म की और एड फिल्म करते हुए आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ रही हैं, ये कितना शानदार अनुभव है आपके लिए? बहुत ही शानदार अनुभव है बिकॉज कभी सोचा ही नहीं था कि एक्टर बनूंगी या मॉडल बनूंगी। बहुत शाय थी मैं बचपन से ही और मेरे लिए अपने को स्क्रीन में देखना भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वो एक्सेप्ट करना कि मैं स्क्रीन में कैसे दिख रही हूँ या मैं कैमरे के सामने एक्ट कैसे कर रही हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही हूँ। तो आई थिंक मैं जैसी हूँ पर्सनली उस स्पेस से निकल के कुछ और एक्सप्लोर करना, वो अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आमतौर पर देखा जाता है जब फिल्में मिलती है, नॉन फिक्शनल फिल्में मिल जाती है या फिक्शनल फिल्में भी मिलती है, आपको नॉन फिक्शनल मिली है जी, जो कि एक रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर है, काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, आपके कितना चैलेंजिंग रहा? एक्चुअली इतना चैलेंजिंग नहीं रहा बिकॉज नीरज सर काफ़ी सपोर्टिव थे। पहले से उनके दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी चल रही थी। जब हम शूट करते थे उन्हें पता था कि वो क्या लेने वाले हैं। तो क्योंकि आपका डायरेक्टर इतना श्योर है चीज़ों के बारे में, आप एज एन आर्टिस्ट आपको किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम मेरी काफ़ी लाइफ ईजी हो गई, मेरी जर्नी ईजी हो गई व्हेन वी वर शूटिंग फॉर द फिल्म। सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर एंड उन्होंने ही काफ़ी मेरे लिए चीज़ें सिंपल कर दी। फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है वो रियल लाइफ तो है, ये साथ में साथ वो अननोन भी है कैरेक्टर जी। तो मतलब उसके लिए आपने कितनी तैयारियां की, क्या मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह अपनाने? मेरे लिए एक्चुअली इजी ये रहा कि लड़की दिल्ली से है और मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे वो नॉर्थ इंडियन स्लैंग या वो वाइब लेना मेरे लिए बहुत इजी था। वो एटीट्यूड जो नॉर्थ इंडियंस में होता है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, आप सॉन्ग देखो वो कलर्स काफ़ी रहते हैं उनके आउटफिट में, तो वो मेरे लिए इजी रहा। काफ़ी अच्छी कॉस्ट्यूम टीम थी मेरे पास। बाकी चीज़ों के लिए एज ए सेड नीरज सर डायरेक्शन उन्होंने जो दिया मैंने फॉलो किया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया जहाँ पे मैं खुद के किरदार को भी एक्सप्लोर कर सकूँ, नॉट जस्ट कि वो जो मुझसे कह रहे हैं मैं वो करूँ। तो वो लोग उनके साथ ये है कि वो आपको बताएंगे क्लियरली कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन आपको वो स्पेस भी देंगे कि ठीक है दिस इज़ द वाइब आई एम टेलिंग यू, बट आप अपने को एक्सप्लोर कर लो इसमें। हमने सुना आप धोनी से भी नहीं मिले, आपको ऐसा नहीं लगा कि कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए एक जिस पर बायोपिक बनी उनसे मिलना? आई थिंक मैंने उसको एक किरदार के लिए की तरह लिया, मैंने उसे किसी की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं लिया, बिकॉज अगर मैं किसी की गर्लफ्रेंड की तरह लूँगी तब मुझे मे भी धोनी सर से मिलने का एक ज़रूरत होता। एक किरदार लिया प्रियंका जो दिल्ली से आई है, कैसी है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे रहती है, हाउ शी बिहेव्स। सो वो सब चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी काम कर लिया था नीरज सर के साथ, तो मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा बिकॉज मैं अपने कैरेक्टर में थी एंड अगर आप अपने कैरेक्टर को फॉलो करते हो देन नथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज यू नो द फील ऑफ द होल सराउंडिंग एंड हाउ यू गोना फंक्शन। दिशा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बरेली से हैं? जी। और बरेली से है, बरेली से प्रियंका भी है जी, और ऑन स्क्रीन आप प्रियंका के कैरेक्टर सो लकी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका मैम एंड आई थिंक शी इज़ अमेजिंग, मेरे लिए वो बेस्ट है एंड शी रियली इंस्पायर्स मी, मुझे काफ़ी प्रभावित किया है उन्होंने। एक्चुअली मैं इतना
फिल्मी नहीं थी। अगर जब से मैंने एक्टिंग करना शुरू किया या जब से मैं फिल्म में आई हूँ तब से मुझे पता चला कि कितना डिफिकल्ट जॉब है। बिकॉज जब हम देखते हैं हमें पता नहीं होता है कि एक्टिंग, हमें लगता है कितना ईजी है, हाँ अच्छे कपड़े पहनो ठीक है, बट व्हेन यू एक्चुअली डू इट, आपको जब सुबह सुबह उठना पड़ता है, उसके बाद आपको इतने दिनों तक आपको शूट करना है कॉन्स्टेंटली, आपकी लाइफ नहीं होती है, वही आपकी एक लाइफ बन जाती है। तब मैं प्रियंका को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो मतलब हॉलीवुड से बॉलीवुड इतना ट्रैवल करके कितनी सारी चीज़ें कर रही होगी। तो यू नो शी इज़ माई इंस्पिरेशन। एंड अगर आपकी कैरेक्टर से कोई क्वालिटी आपको रियल लाइफ में रिटेन करनी हो तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटी? बीइंग हैप्पी, बीइंग पॉजिटिव, शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव गर्ल। फैंटेसी लैंड में नहीं रहती है, खुश है लेकिन ऐसे ओवर द टॉप, मतलब पता है रियलिटी क्या है लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करके खुश है, बहुत पॉजिटिव है। तो आई थिंक पॉजिटिविटी लेना चाहूँगी। जैसा आपकी फिल्म को लोग काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है और जाहिर सी बात है जब आप सिनेमा के पर्दों में दिखाई देंगी आपकी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, साथ साथ क्रिटिसिज्म भी झेलना रहेगा। जी, वो तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए आप कितनी तैयार है? आई थिंक काफ़ी तैयार हो चुकी हूँ। इससे पहले तेलुगु फिल्म करा मैंने, फिर मैंने बेफिक्रा वीडियो किया। सो आई थिंक आई एम यूज्ड टू ऑफ दैट, यू नो, दिस क्रिटिसिज्म एंड अप्रिसिएशन वाला फेज। इट्स फाइन एक्चुअली। अगर कोई वैलिड पॉइंट है, व्हेन पीपल आर क्रिटिसाइजिंग मी फॉर अ वैलिड पॉइंट, आई वुड वांट टू टेक दैट पॉइंट एंड आई वांट टू लर्न, बिकॉज आप परफेक्ट नहीं हो सकते, नोबडी इज़ परफेक्ट। सो आई थिंक इट्स नाइस अगर कोई मुझे बता रहा है कि ये आप में कमी है या फिर आप ये अच्छा कर सकते हो, तो आई वुड वांट टू टेक दैट पॉइंट। बट जो इनवैलिड रीजंस होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, तात्पर्य नहीं होता है, तो आई थिंक उसके लिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और काम से रिलेटेड बातें मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जैसे अभी तो ज़्यादातर आपका रियल लाइफ क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ा होगा, रियल लाइफ आज अभी रियल लाइफ का क्रिटिसिज्म वो मुझे आप क्या अंतर देखती हैं? रियल लाइफ तो क्रिटिसिज्म मैं देखती भी नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है। वो अपने ओपिनियन सबके होते हैं या फिर अपना जजमेंट होता है जो, अनलेस समवन नोज मी देन आई माइट एक्सेप्ट कि उसका एक पॉइंट वैलिड होगा। बट जब मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरे लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता है, तो हाउ कैन यू हैव अ ओपिनियन अबाउट मी? सो वो सब चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती है, मैं सोचती भी नहीं हूँ। मैं अपना ध्यान सिर्फ काम पे रखती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं काम करने आई हूँ एंड आई एम मोर देन फॉर्चुनेट कि मुझे काम करने को मिला, जो काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है। तो अभी मैं उस पॉइंट में अपनी ये लाइफ के बारे में सोच के कि लोग क्या सोच रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय फोकस। रियल लाइफ में अभी तक क्रिटिसिज्म देखा नहीं है, सो वंस आई गेट देयर देन आई विल नो हाउ आई एम गोइंग टू फील, बिकॉज आई कांट टेल यू राइट नाउ कि मैं क्या फील करूँगी। आई माइट से राइट नाउ आई वॉन्ट, doesn't matter to me or whatever, but maybe जब पिक्चर आएगी क्या पता मुझे फ़र्क पड़े। चलिए पिक्चर तो आएगी, मैं आपसे जानना चाहूँगा धोनी से आप कब मिलेंगी और जब आप धोनी से मिलेंगी तो आपका कैरेक्टर किस तरह होगा? मतलब आई मीन आप रियल लाइफ में रहेंगी या रियल लाइफ में रहेंगी आप? आई थिंक जो भी कास्टिंग हुई है कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ से इंस्पायर था। इवन कियारा को आप देखो तो कहीं ना कहीं वो साक्षी आपको उसमें दिखेगी, या फिर आप सुशांत को देखो तो उसमें कहीं ना कहीं धोनी दिखेंगे। तो मे भी शायद वो प्रियंका उनको कहीं मुझे मेरे अंदर दिख जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपना भी एक पिंच ऐड किया है कैरेक्टर में, जो आपको करना पड़ता है क्योंकि आप इतना टेक्निकल नहीं जा सकते हो। समटाइम्स यू हैव टू ऐड योर थिंग टू योर कैरेक्टर, सो इट बिकम्स मोर रियल। पता नहीं कब मिल रही हूँ, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना मीट हिम, but I'm really looking forward. I want to ask him if he liked the film, if I was like Priyanka, you know. Okay, lastly I want to know about your upcoming project. आप एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम कर रही हो, उनके बारे में बताइए। कुंग फू योगा नाम है पिक्चर का। इट्स एन एक्शन कॉमेडी एंड आई कांट टॉक अबाउट माई कैरेक्टर राइट नाउ बिकॉज टू अर्ली। एक बार अगर कुछ अनाउंसमेंट होगा या ट्रेलर आएगा देन आई विल बी मोर ओपन टू टॉक अबाउट इट। Yeah, so it's a very nice way, काफ़ी अच्छे से इंडिया और चाइना का रिलेशन दिखा रखा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म फॉर द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया को एक गरीब देश, पॉवर्टी, ये वो स्लम्स दिखाते हैं। इस फिल्म में काफ़ी खूबसूरती से इंडिया को दिखा रखा है एंड कल्चर को दिखा रखा है, हिस्ट्री को दिखा रखा है। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि
मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन अ वेरी नाइस वे। आपको लगता है कि इस फिल्म के जरिए इंडिया और चाइना के बीच में जो दरार रहती है, पॉलिटिकल हो या फिर नॉलेज बहुत मिलेगी। दरार मुझे नहीं पता, वो तो इंसानों के अंदर है, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है। आई थिंक इट्स अ पर्सनल थिंग। मुझे चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट नो ये दरार कहाँ से आती है, किसको किससे प्रॉब्लम होता है। They don't. They love India. Okay. Some guy told me that Indians are the most beautiful people in the world. Imagine if a China from China. Okay. And if they are saying that, I don't know who has the problem. So there's something wrong going in between. But I hope through the film we can express it in a way, to spread love and unity and diversity. So yeah. चलिए हम उम्मीद करते हैं आपकी धोनी सुपर हिट ही ना हो, ब्लॉकबस्टर हिट हो। Thank you. और आपको धोनी से मिलेगा मौका। जी, thank you so much. Thank you. Sorry for that. The moment he mentioned 24 hours, I was like, no, we didn't delay it for 24 hours. So you guys are not waiting for 24 hours. But yes, to start off, sorry for the delay. And as far as the promotion of the movie is concerned, yes, we have been to 3 different cities, including Mumbai now. And the kind of response what we have got so far is just fantastic. Jalandhar was brilliant, followed by Delhi, former school of Sushant. And I feel we have got very good reception each and everywhere. As far as going through the process is concerned, it's very tough. Frankly speaking, the only good thing, we don't have to walk 1500 kilometers. You have flights and you can take all of that. But yes, a lot of things get delayed because of the weather and everything. But as far as just the promotion is concerned, I'm very happy that I'm part of it. I have time to be part of it. And more than that, hats off to all the film stars, who do it on a regular basis, and they actually do it for 15-20 days before the start of the movie, before the movie gets launched. So I think it's a fantastic effort on their side, and we all need to appreciate it, that the amount of effort they put in, leave getting into the character part, acting and everything, it's just that the amount of effort that is put in to make a movie successful, So आपने रिसेप्शन के बारे में बोला था, दिल्ली जलंधर के बारे में, लेकिन आमची मुंबई तो आमची मुंबई है भाई। Hey Mumbai, you're not doing well, yeah. Come on. Mumbai is a very special place. Hey, one second. Mumbai is a very special place. From the captain, hold on. Mumbai, if you see, is a very special place. 2007 World Cup, T20 World Cup, when we won, we came back to Mumbai, and quite a few of us from England, we went to South Africa to play the T20. And once we were coming back, we had won the tournament, we were coming back, and it was almost over 3 months. So, that anxiety of being with the family is there. So, we are about to land, and I think it was very cloudy, it was raining heavily. And we knew that, we had like a march where we were supposed to go from the airport to the stadium. And I told all my friends, what? It seems we'll get an early flight home. Because I thought in the kind of rain, that nothing will happen. We'll be at the airport, we'll be able to catch the flight home to respective places and we'll be off. But I was completely wrong. We just got out of the aircraft. Before immigration, there were people. And when I talk about people, lots of people. I had the trophy in my hand. It was a very heavy trophy. It was the first edition. It must be one of the heaviest trophy. I was holding it in my right hand. We started walking. I had to put it like that. And after a while, I realized it's too heavy to carry. But there's so many people, I couldn't lift it up. So it was like that till we crossed immigration and we boarded the bus. And right from the airport till the Wankhede Stadium, there were people on both the sides of the road and they were so happy. A lot of them would have missed their flight. But still, the cars were parked, all of them were outside and they had a smile on their face. That's an amazing feeling because that was the first time you saw like a swarm of people and all of them were happy. It was raining, the mobile phones were out, everybody was clicking pictures and everything. So that was the 2007. I don't think I need to talk about 2011. But it's just that, we are a bit late for here. So that whole thing of, Mumbai, it actually slipped and I was more concerned about, being late for the launch.
Come on, guys, let's give it an oh, come on, that is awesome, man. So, generally, Neeraj sir makes very real films and all of that, and there is a big responsibility of portraying your life. आपकी जो पूरी life story है इस film के जरिए, आपको कैसे लगता है ये जो amalgamation हुआ है film का और आपकी life का, आप थोड़े से worried हैं, कैसे लग रहा है आपको, क्या feeling है? No, I'm not worried at all. I have confidence in all the crew who has worked in the movie. Neeraj especially, right from the start. The good thing was we were on the same page. Because I've seen quite a few of his movies, and I like how he puts things on screen. And I think right from the very start we were clear. We don't want to make a movie which makes me a hero or glamorizes me. It was more about the journey, so that people can relate to it, because we all go through almost the same thing. Okay, everybody doesn't play for India, but at the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. And it's all circumstantial, small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. So it's all about that, the small things. Yes, people know a lot about me. I played football. I was from a particular school. I got a job with the railways, and I moved on and all of that. But what happens in between that is what really pushes me or transforms me to what actually I am today. So the movie is more about the journey and how I deal with everything, because I keep saying, be in the present, but the movie in a way will actually show what all happened that actually helped me be in the present, or that taught me to be in the present, and how being in present really helped me. So a brilliant blend इस movie के जरिए cricket and अब Bollywood हो रहा है, तो आपको लगता है क्रिकेट को एक अच्छे और ज़्यादा ब्राइटर लाइट में दिखाएगा इस फिल्म के जरिए, आपको लगता है? I'm a bit hesitant on that, but as I said, people can easily relate to it, and cricket is a part of the movie. Like how I keep saying, cricket is a part of life. It's not my entire life. In the same way, cricket in this movie is a part of the movie. It's the human feeling and the emotion and everything that's more of the movie in this. So it's not only cricket. So हमने देखा कि आप प्राइवेट पर्सन हैं, आप ज़्यादा जैसे कहते हैं आप you're not very loud. आपकी स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, तो आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा है कि अब सबके सामने, अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, to watch your own movie. Movie that's made on you. It's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसे बैठा रहूँगा, मैं ऐसे बैठा रहूँगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूँगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज़्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. सर हेलीकॉप्टर शॉट सर. सो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने. एंड नीरज तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं आई फील ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है. इट स्टिक्स टू द थीम
and that's how it gets over. So नीरज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे. I think he's very talented, बहुत talented है, बहुत hard working है. और I felt जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, I think काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज़ अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी. मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं. तो if you can convince him for an interview, you will get a better interview than really asking me a question, क्योंकि मैं काफ़ी बार बोल जाऊँगा नहीं, इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. बट सो बहुत ही स्पेशल है मुंबई आपके लिए, टीम इंडिया के लिए. एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे सारे मुंबईकरों के लिए जो गैदर्ड है यहाँ पर, समथिंग दैट यू वांट टू से. नहीं, लास्ट मतलब टेंशन मत लो, डोंट सस्पेंस बिल्ड हो रहा है भाई, आराम से. सर, one message to all these fans, all these Mumbaikars who have gathered here, sir. I think for me, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई is very different place. हर जगह जब आप जाते हैं, दिल्ली बहुत डिफरेंट है, कोलकाता बहुत डिफरेंट है. I was fortunate कि मैं चेन्नई में 7 साल खेला, तो वहाँ के कल्चर को समझ पाया. मुंबई 2005 के बाद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया शूटिंग्स वगैरह में. आई फेल्ट यहाँ का जो कल्चर है वो एंटायरली डिफरेंट है. People are very focused in what they do, and the culture is also how they have moved forward in life. How they are willing to help each other, but at the same time they are not very intrusive. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप, जैसे if you are a celebrity, आप बाहर जाके घूम भी सकते हो. लोग आएंगे, they'll ask you for pictures, photographs. अगर आप बोलो नहीं अभी थोड़ा please छोड़ दो, they are happy. Okay, thank you. They'll move on. So I feel that's the essence of Mumbai, and I feel that's something that needs to keep moving forward, keep going forward to the next generation. क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी, बिकॉज मुंबई जहाँ तक ज़मीन की बात है तो फैल नहीं सकता है. पॉपुलेशन फैलेगा, गाड़ियाँ फैलेगी, ट्रैफिक फैलेगा, सब कुछ होगा. सो that patience level needs to go up, but at the same time everything else needs to be there at the same time. Thank you, sir. Thank you so much. Sushant, the man who's played MS Dhoni. So, I think let's give it up for Sushant, man. Nobody could have done this better than him. सुशांत, मुझे याद है अब हम एक बार मिले थे बाहर, हम ऐसी बात कर रहे हैं. आई रिमेंबर टेलिंग यू दैट आई डोंट थिंक जब आपका फर्स्ट लुक निकला था, आई सेड बॉस, नोबडी कुड डू इट लाइक द वे यू हैव डन इट. सो रियल, सो मतलब इतना पैशन, वो पोस्टर में ही इतना पैशन दिख रहा था. I want to ask you, this is the mother of all biopics. मतलब right, कुछ नहीं, मतलब for every Indian सीना तान के खड़ा है यहाँ पर, बोल रहा है बॉस, this is it, like the Michael Jackson moment, this is it. I'm telling you how much pressure to get into the skin of the character, and you have done after this trailer launch. I think boss, I think जुड़वा ऐसे लग रहे हैं यार, seriously, they won. So how much of pressure? I think to start with, it was more excitement than pressure. मैं जैसे एक स्टोरी बताऊंगा, 2007 की बात है या 6 की बात है. बहुत ही तवज्जो, बहुत ही मुश्किल से किसी तरीके से मैं और मेरी फैमिली MS तक पहुंच पाए थे, और मैंने एक फ़ोटो खींचा था अपनी फैमिली के साथ. और he is one of the very few person who I seriously have very enormous respect for. I look up to him, and so to get an opportunity to know his inside story up close and personal gave me lot of excitement, not pressure. And very honestly, there are films in your career, you do it with full honesty and you end up being a good actor, but there are very, very rare films that you do and you end up being a good human being, and this is one of the. What a line, सुशांत यार, क्या बात बोली आपने यार. आपने बहुत रिसर्च किया, जैसे सर ने कहा कि आप इनके पीछे पड़े थे इंफॉर्मेशन के लिए. किस टाइप की रिसर्च हुई यहाँ पर? मैंने पहली बार MS को थोड़ा सा अपना कूल जो है वो खोते हुए देखा था. आपका प्रोमो मिल गया. हाँ, पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली, पेशेंटली, विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे. लेकिन एक बार बोलते यार, तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में. सुशांत में ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ हुआ था ऐसा स्पेसिफिक, मतलब क्या पूछा था आपने? नहीं, मैं बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछ रहा था. मेरी अच्छा क्रॉस
ऐसे एक बार पूछता था, फिर उसको ना बाएं से पूछता था, आंसर अगर सिमिलर हो तो अच्छा सच बोल रहा है, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाता था. एंड आई टोल्ड यू इट वाज अ बिट ऑकवर्ड, इनिशियली थोड़ा ऑकवर्ड है टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है. एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब वो 15 मिनट हो जाते हैं लगता है ये मैं कर रहा हूँ. So I was like, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा. I think you need to give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And now, a few selected fans, sir, have got an opportunity. Sushant, कुछ fans हैं यहाँ पर जो आप लोगों से सवाल पूछेंगे. एक-एक करके अपना नाम लीजिए. And the lucky few are going to get this opportunity right now. So, Baba, one second. We've got mics passed out there somewhere. Yeah, we've got somebody. Hold on. My question is for Dhoni, sir. Sir, what lesson the game of cricket teaches you? What game of cricket teaches me? You know, it teaches you a very important lesson in life. I feel cricket it's a great leveler. You know, it levels you out. You know, if you're not humble, it teaches you how to be humble. Cricket एक ऐसा गेम है जो फ्लिप ऑफ कॉइन से स्टार्ट होता है. यू नो, टॉस के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है, यू डोंट नो हेड आएगा टेल आएगा. क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है, और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है. यू नो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिकेट में ही होती हैं. दैट्स वाई वी ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट लेवलर. और हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है, यू हैव टू डील विथ योर इमोशंस, प्रेशर, जो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती हैं, एंड इट ऑल रिलेट्स टू यू, इट ऑल रिलेट्स टू अस व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ. सो आई फील इट टीचेज यू अ लॉट. अगेन इट इज़ अ टीम स्पोर्ट, सो अगर आप दूसरे भी टीम स्पोर्ट अगर खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे. बट कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिकेट जैसे गेम में ही होती है. यू नो, अगर आप नाउ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, you know, I think it has to be taken in a humorous sense. You know, DRS की अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन योर लक सेम डिसीजन पे आप आउट भी हो सकते हैं और नॉट आउट भी हो सकते हैं. अगर अंपायर ने आउट दिया है तो आप आउट है, नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट है. यू नो, तो इट फर्दर एड्स ऑन टू सम ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्रिकेट. Have you achieved what you wanted to achieve from cricket? You know, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूँगा. आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूँ, चाहे आज खेलूँ, 6 महीने बाद खेलूँ या 3 महीने बाद खेलूँ. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है. यू नो, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. यू नो, जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. So that is the purpose. You know, milestone से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. You know, माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड है, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. You know, so it's not about milestone. What it's about is, you know, how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. You are a global icon, and what makes you move every day? What's your mantra of the day, which keeps you going, motivates you? Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है. सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऐसी कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती. आसपास इतने सारे मोटिवेशन है. यू नो, आप खुद अपने आप के मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है. यू नो, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो. एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, एंड आई फील फॉर मी, यू नो, कंट्री इज़ द बिगेस्ट और द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. Hello, Mahi sir. Sir here. Hi sir. Sir इधर. अरे हटना. Sir. First of all,
first of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ, और ये दिस इज सवाल ड्रीम फॉर मी. ओके सॉरी हाँ. तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल. तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज़ मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी. ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे. थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर. दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें. ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें. और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए. मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्ज़ाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है. तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए. मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है. उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो. You live in Mumbai. Who is your favorite Bollywood singer? यार ये बड़ा सिंपल आंसर है, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर. Hello, Mahi sir, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Shrishant, and also before hitting the World Cup winning 6 over long off. Long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था. और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस 4 हो गया. बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें पेस नहीं है. तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका है. मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता. बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है. छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है. दैट्स वाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको. सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस. और जहाँ तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए. क्योंकि जहाँ जाओ हर कोई एक ही चीज़ बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है. क्यों? इंडिया में हो रहा है. मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज़ बोलता था. आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे. एवरी टाइम इट वॉज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना, और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है.
So it was a relief कि हाँ खत्म हो गया. Some people will find it weird, but I want to say to you कि जब भी आप रिटायरमेंट लो तो प्लीज बता के लेना, क्योंकि लास्ट मैच हम ऐसे देखें कि लास्ट टाइम माही खेल रहा है और उस फील के साथ ले, बिल्कुल एडप्टली मत लेना प्लीज. नहीं, अगर बिना बोले लिया तो डेफर्ड लाइफ फिर से मैच चला देंगे. हेलो, हाय MS धोनी एंड सुशांत. मेरा क्वेश्चन सुशांत से है. आपने MS धोनी का किरदार निभाकर आपने क्या सीखा? इंटेंस क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत इंटेंस. और सर, मैं आपके पास आकर थोड़ा पिक्चर लेना चाहती हूँ. असल मुद्दा ये है यह क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं और आप जिस तरीके से फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पंक्चुएट किया गया है फिल्म में. तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो बार बार MS अभी कह रहे हैं, हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वो जब हम करते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है. हम हमेशा पास्ट में ड्वेल कर रहे होते हैं या फ्यूचर में होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, सचमुच खुली आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. मेरा सवाल आपसे है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पे एक्टर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेटर राजनीति कर रहा है और राजनेता पॉर्न देख रहा है और पॉर्न कलाकार स्टार बन रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है. डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपने ऑप्शन बहुत ज़्यादा दे दिए. लाइफ में जब बड़ा हो रहा था तो ऑप्शन कम थे. क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो. 18 साल की उम्र में जब जॉब लग गई तो एक चीज़ हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट का जॉब मिला है. क्रिकेट अगर ख़राब भी करते हैं तो एक रेस्पेक्टफुल जॉब है हमारे पास. आपने अब इतने सारे ऑप्शन देखने हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा. पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, किस पर्टिकुलर रोल में लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे. तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट काफ़ी यूनिटी है, काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जैसा कि आपने बोला. आगे का बाद में देखेंगे. अभी थोड़ा क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो अभी उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे. Alright, that will be the last question. We're going to have a photo op session now with Mahi and Sushant. तो मुझे जरा भी नहीं लगता था कि मैं एक बार मॉनिटर जाके देखूं कि मैंने क्या किया. आई वाज सो श्योर कि इट विल बी एन ओके टेक. There was a movie called Wednesday, which happened to be a turning point in your directorial career, which brought a lot of accolades in your career as well. So now this movie Dhoni, what do you think Dhoni is going to be as a movie in your career? The idea is to give a movie that the audiences like. Nothing more, nothing less. I hope it's for an audience, and I hope they love the film. Sushant, was MS satisfied seeing you performing himself, or how was his reaction seeing you? आपके सामने थे आप. What did personally complimented you, or how was it? अभी हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे तो मैंने उनको एक वीडियो दिखाया था जो ट्रेनिंग वीडियो था, जिसमें मैं उनके जैसा उन जो टिपिकल शॉट्स वो जो पुश करते हैं, जो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, जो विप करते हैं, वो सब खेल रहा था. तो वो देखे और बहुत ही स्माइल करके बोलते हैं यार ये तो एकदम फोटो कॉपी कर दिया है तुम. तो अच्छी बात है. Personal level, did you learn anything? I can't hear you, bro. Sorry. On a personal note, on a personal level, did you learn anything from him? Of course, I've learned, and that's why there were many things before I got this film that I was hugely, immensely inspired by, and there were many things that I wanted to understand vis-a-vis Mahi is concerned, and that's precisely the reason why I did the film. I have a couple of questions, but firstly, it's a mind-blowing trailer. It's the grandeur. It's looking really great, really good. First question is that we have seen Mahi getting creatively involved in the whole process of the filmmaking. So
we have seen a lot of other players or other cricketers or maybe sports person, getting involved in the marketing and all those aspects also. So to what extent, anyone can answer, Mr. Pandey, Mr. Singh, anyone. So to what extent we will see Mahi getting personally involved in the marketing and the strategy of the film? That's my first question. And second question is, the second question is, we saw, the last scene, Mahi hitting the ball out of the park, the World Cup scene. So there were a lot of news about, it was written that the original footage will be used for the film. But we saw that you guys have recreated that scene. So was there any problem with the BCCI providing the, was there any issues with the BCCI not providing the footage for you guys? Who's this address? I mean, you can answer, Mr. Singh or Mr. Pandey, anyone. First of all, I would just like to reintroduce, this is Arun Pandey, the producer of the film. That's Vijay Singh, the producer of the film, Foxstar Studios. First of all, thank you very much for encouraging word. And let me tell you one thing. We had full support of all cricketing body. That's why we were able to make this movie. Otherwise, it was not possible at all. So I am really thankful to entire board, every board, not only BCCI, every board. So that's why we were able to make this movie. So, and about creativity, yeah, of course, Neeraj ji and MS and Sushant both spent lots of time together, and everyone were on same page. So definitely because it was his biopic, so his involvement was, of course, was there. And about marketing and promotion, I mean, I'm thankful to him that whatever request we are putting towards him, especially my job become easier because of Neeraj, because he's able to convince him, and he's agreeing for that. So he started understanding. So whatever support is required, he's giving support to us. And Sushant, the question is for you. While during the whole journey for the film, you have been injured, you have been practicing a lot. It was like so if you have to narrate the whole journey in few words or few lines, so what would that be? How would it be? It's slightly a dicey question. About the film, about my journey, what? Of course, but cricket is just one aspect of the film. Through cricket, we are not showing anything. But yes, cricket is one of the one of the things that we are using in order to tell you what the man is, who the man is. So basically, cricket was important because in order to convince the audience that I am MS, so I have to play shots like him. So obviously, there were lots of time that I invested in playing shots like him. I got injured, obviously, but that's what you do when you try to cultivate a new skill at my age. But then worth it. You liked this trailer, and that's what we wanted. I want to know, like you talked about training. You are a fit guy, but when you had to play Dhoni, did you realize that you're not as fit as the cricketers? What did you do? How did you cope? And what was the fitness training like? It happened to me I think in the second or the third day of the training when Kiran Moresa, he was my trainer, and he asked me to wicket keep. And I always thought it's a very easy job. Let me be very honest. I always thought, you just have to catch the ball if you have very good eyesight and your reflexes are good, so you can catch the balls. But let me tell you, in 30-40 seconds, I could not sit in that posture for like 10 seconds. I got backaches, I got cramps on my quads and everything, and it was so difficult. I can't tell you, I broke my finger. I had bruises all over my hand, and it's such a tough job. So yes, now I have immense respect for all the cricketers who play and at this level, and so obviously. मतलब इनका ही बायोपिक आया मेरे पास एज अ प्रपोजल, और किसी का नहीं आया. ऑन अ सीरियस नोट, कहानी इनकी जो जर्नी रही है, जहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की है, बहुत ही इंस्पायरिंग है. आप जानती हैं शायद कि ही वाज बोर्न झारखंड, रांची, इट वाज देन बिहार. फ्रॉम रांची टू
to be the person to achieve what he's achieved. So it's a very long journey, and I always find these kind of stories very inspirational. तो झुकाव उसी तरफ था. ये आप बताएंगे या ये MS बताएंगे कि मैं कितना ऑनेस्ट रह पाया. MS ने फिल्म देखी है, तो आप जब नेक्स्ट मिले तो उनसे पूछ लीजिए. हाँ, तो ऐसा था कि बिफोर व्हेन वी स्टार्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, मी एंड MS हैड अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वो मुझे जो भी है सब कुछ बता देंगे, एंड उसके बाद हमारी रिसर्च टीम जो है, एंड वील डू अ स्क्रीन प्ले, and then he'll see the screenplay, he'll read the screenplay, and then he'll react on it, and suggest whatever needs to be deleted or needs to be changed. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी शायद जो वो शेयर नहीं करना चाहेंगे शायद with the world by and large. ऐसा कुछ निकला नहीं. बस यही जवाब है आपका. That's not my call, as you would understand. It's not my place to answer on his behalf also. He's an individual who has his own choices. I don't know what the reason is, but you can't ask this question to me because I'm the wrong person. I'm absolutely sure that you should guys hear. Yeah. I mean, it should have been informed. I don't know why that has happened. I apologize on that behalf that it should have been communicated to you. Yeah, I'm apologizing on their behalf. Fantastic. Thank you. धोनी जी की जो लाइफ है काफ़ी ग्लैमरस रही है, उबड़ खाबड़ भी रही है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि वो डटे रहे कि नहीं इसको नहीं डालना है और आपने कहा नहीं मुझे इस फिल्म में करनी, वो चीज़ें ऐड करनी है, ऐसा कुछ है कोई चीज़? नहीं, ऐसा मैंने अभी बताया इनको कि ऐसा कुछ निकला ही नहीं. हमने जो तय किया था आपस में कि वो एक बार सब कुछ बता देंगे और उसके बाद हम लोग 3 घंटे की फिल्म होती है, 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, तो बेसिस दैट जो स्क्रिप्ट होगी और अगर उनका कहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो बताएंगे, बट देयर इज नथिंग दैट केम आउट. सो व्हाटएवर ही शेयर्ड, basis that the script was made, and that script is the film that you're going to see. कि अगर बॉलीवुड का इतिहास देखा जाए तो स्पोर्ट्स की फिल्में हाल ही में चलना शुरू हुई हैं. अगर चक दे का एग्जाम्पल छोड़ दें तो अभी सुल्तान चली है, मैरी कॉम चली है, मिल्खा चली है. लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स हैं वो इतने एनकरेजिंग नहीं हैं. जहाँ तक मुझे याद है लगान एक फिल्म थी और उसके पहले इकबाल थी श्रेयस तलपड़े की. क्रिकेट पे ज़्यादा फिल्में चलती नहीं और हाल ही का एग्जाम्पल है अजहर का जो नहीं चली. तो क्या जब आप ये रोल प्ले कर रहे थे और जब आपने ये फिल्म साइन की तो आपके मन में बैक ऑफ द माइंड किसी तरह की आशंका, एप्रीहेंशन था कि क्रिकेट पे मैं फिल्म कर रहा हूँ? क्या कुछ चल रहा था उस दौरान आपके मन में, मैं जानना चाहूँगा. सर, मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा था और थिएटर कर रहा था तो मुझे हर शो के 250 रुपये मिलते थे और मैं उसको बहुत दिल लगा के बहुत अच्छे से काम करता था उसमें भी. तो आज भी जब मैं फिल्म्स में काम करता हूँ तो कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचता. जिस दिन प्रोड्यूसर बनूंगा उस दिन मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा. A lot of controversies have been revolving around Dhoni throughout his tenure. So even light has been focused in the film. Are we going to see even that? If yes, then, and if not, then why? I won't know your definition of controversy, but you saw the trailer and we've touched upon certain key elements of his life, certain decisions that he took while he was working, both in his personal and his and in the capacity of a captain. And yes, they are all there in the film. We are. It's not a hagiography. We are not like MS himself said that it was not there. The idea was not to glorify and put a halo around him. The idea was to tell his story as is, and that's what we've tried to do. And I hope we are successful in that. यही कि आप देखिए कि हम सब कितना हर समय यही सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा तो बहुत गंदा होगा. फिर हम प्लान बी सोचते हैं, प्लान सी सोचते हैं. लेकिन आप जब इस जगह पे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आप बिल्कुल भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बिल्कुल भी पास्ट के बारे में, ना तो आपका कोई रिग्रेट होता है, ना तो आप वापस जाना चाहते हैं. आप सिर्फ प्रेजेंट में हैं और जो सही आपको लगता है वो बार बार करते रहते हैं. ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में होता है. सुशांत जी, इस फिल्म में आप गाने वाने गा रहे हैं आप किसी यूनिट के साथ या नहीं? मैं तो कभी डांसिंग उदास दिख रहे हो आप. मैं किसी फिल्म में गाना नहीं गाया सर. कुछ म्यूजिक के बारे में कहिए नीरज जी. हाँ जी. रोमांस के बारे में कहिए कुछ. सुशांत रोमांस कर रहा है कि नहीं फिल्म में? सुशांत रोमांस कर रहा है. सुशांत रोमांस कर रहा है. फिल्म का ट्रेलर लॉन्च झारखंड में नहीं हुआ, बीइंग धोनीज होम टाउन. तो आर यू प्लानिंग पर्सनली वहाँ पे जाके किसी तरह से फिल्म को प्रमोट करोगे किसी लेवल पर? पिछले 1 साल से वहीं पे था
अभी इधर आया हूँ तो थोड़ी देर बाद जाऊँगा उधर। ऑफ कोर्स झारखंड में भी जाएंगे और मैं पटना में पैदा हुआ था तो उधर भी जाएंगे, बड़ा आसपास वाली जगह। इंजरी तो बॉडी में थी, हार्ट ब्रेक हार्ट में था, और माइंड सेट तो सही था, माइंड अलग है। बिल्कुल भी नहीं। Obviously, there's one thing to play the great Mahendra Singh Dhoni. I'm sure you've done a good job at that. But how much have you been able to incorporate the great sense of humor of the Captain Cool? Great sense of humor of him? Yeah. Well, I got the dialogues and I got the timing correct. So yeah, in the film I've got a great sense of humor. But in your interaction with Dhoni, like, were you able to imbibe that sense of humor? Catch? He was laughing at most of my jokes, so I would assume that yes. Thank you so much. The trailer looks really amazing and all the best for the film. जो फिल्म जब बन रही थी तब आप काफ़ी न्यूज़ में थे, प्रोफेशनली और पर्सनली भी। अंकिता को लेकर भी आप न्यूज़ में थे एंड कृति को लेकर भी आप न्यूज़ में रहे हैं। कृति ने उस पर बात किया है ऑन द लिंक अप विथ यू, योर कमेंट्स टू इट। उन्होंने बात किया, उस पर कमेंट करना है या? जी, कृति ने बात किया था जो आपको आपके साथ जो उनका लिंक अप न्यूज़ आया था। जी, वो बहुत हमेशा सच बोलती हैं, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। सुशांत, मेरे दो सवाल है आपसे। एक तो आई जस्ट वांट टू नो दैट जो ये हेलीकॉप्टर शॉट्स एक्चुअली उन्होंने बताया रेप्लिका, हाउ मेनी डेज इट टुक फॉर यू टू लर्न दैट शॉट एंड इट वाज रियली वेरी गुड यू प्लेड। और सेकंड है कि आई सॉ योर बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू वर Mahi was here and the body language changed when the Mahi went away. What was it like? Were you nervous that time when Mahi was around? Right now? No, when Mahi was here right now. बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई? Yeah, body language changed because that time नहीं, उस समय मैं बहुत ही कंफर्टेबल चेयर पे बैठा हुआ था। अभी अरुण सर ने वो चेयर ले लिया है और मेरा चेयर जो chair is same only, sir. Just because of this, otherwise I'm completely the same person. Oh, you were nervous? It's a wobbly chair. So ये जो फिजिटी है ये चेयर की वजह से मैं बिल्कुल काम हूँ अंदर से। Okay, और हेलीकॉप्टर शॉट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो वो कुछ पहले कुछ 2-2.5 महीने लगे, क्योंकि मेरा एक जो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे एक रिब में स्टाइल मारने के चक्कर में, तो उसके लिए कुछ 15-20 दिन का गैप हो गया। नहीं तो 2-2.5 महीने में मैंने सीख लिया था। अच्छा, पहले लड़की तो ढूंढो उसके बाद शादी करो। In the perspective that it's been made, ये बहुत unusual फिल्म है। They are not, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि in Bollywood हम सब कहते हैं we must make more strong stories. Now finally we've got a film which I can tell you Bollywood is going to be really proud of it. We're going to be releasing the film very wide in India and across the world. So this is a film that's going to make all of us as Indians very proud. Thank you.